Good morning, students. How are you all? I hope that you all are safe and fine at your home and increasing your immune system. And I just want to say that be regular whenever the class will begin. You have to attend only that particular class and do that particular work. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 10, GST. GST means goods and service tax. This is a new chapter added in your book since the last 2 years. So accounting for GST we will learn in this chapter. So what we will understand in this particular chapter? We will understand what do you mean by GST. We will learn what are the taxes merged into GST. Then we will understand GST rate structure. We will cover these 3 topics. Okay. So first of all, let me tell you what is GST. G stands for goods, S stands for service, and T stands for tax. And this is indirect tax. So firstly understand that tax are of 2 types. Tax are of 2 types. First is direct tax and second is indirect tax. Direct tax means, suppose this is a person A, so tax will be charged from person A. So the burden of tax directly lie on A. But suppose if there is a person A and if he pays the tax, but ultimately he will cover this tax to B. So B is the person who is paying the tax indirectly. Let's take an example. Suppose your father is earning income. So on the income earned by your father will pay the tax to the government. So your father is Mr. A and he is paying direct tax on his income. But suppose if your father is a businessman and or some agent and then paying a tax to the government, but the tax is ultimately will be collected from the customer. So who has the burden of the tax? Mr. B. So for B this is a indirect tax. So whenever how the GST apply? GST will apply on goods and service. When these goods and service tax will apply? When the goods and services are supply. Okay, supply will be in 2 places, within state and within country. Okay, within country and within state. Within state means only state के अंदर, within country सभी states के अंदर. Okay, so what is the meaning of GST, children? Let us understand. GST is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and service except on petroleum and alcohol for human consumption. Okay, supply of goods means, what is the meaning of supply? Means sale of goods and services. Okay, it is a nationwide tax. GST जो है वो central tax है and it has the principle one nation one tax. When was it passed in the parliament? It passed on 24th March 2017 parliament and it came into effect on 1st of July 2017. So you have to remember what is the principle of the GST? One nation, one tax. Okay, all the tax which were applied earlier and levied on the supply of goods are merged after introduction of GST. GST आने के बाद उससे पहले जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे मर्ज कर दिए गए. Okay, so I hope you understand. We have covered the first topic, meaning of GST. GST means goods and service tax. It passed in parliament to 24 March 2017. And when was it applied in all over India? 1 July 2017. And what is the principle of GST? One nation, one tax. Supply means sale of goods and services, and it is applied on every item except alcohol and petroleum for human consumption. Now we will understand the second topic, what are the taxes merged into GST. So you have GST has replaced many indirect tax. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पहले बहुत सारे टैक्स थे वो सारे के सारे मर्ज कर दिए गए
एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे सेंट्रल लेवल के टैक्स थे, तो इनको मर्ज कर दिया गया। तो व्हाट आर द सेंट्रल लेवल टैक्सेस? सेंट्रल लेवल टैक्सेस आर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सेंट्रल लेवल के टैक्स थे। अब जो स्टेट लेवल के टैक्स थे वो कौन कौन थे? स्टेट लेवल के टैक्सेस ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, ये सारे स्टेट लेवल के टैक्स थे। अब इनको मर्ज करके जीएसटी में डाल दिया गया। इसको बोलते हैं SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको बोलते हैं CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। तो जो आपके पास दो तरह के लेवल थे, सेंट्रल लेवल के जो टैक्स थे उन्हें मर्ज करके क्या बनाया गया है? CGST, और जो स्टेट लेवल के जो टैक्स थे उनका क्या बनाया गया है? SGST। और आपको दोनों तरह के टैक्सेस के नेम भी लर्न करने हैं। देन आता है आपका जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर। हैव अ लुक ऑन द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। So goods and service tax are divided into 5 slabs. So what are the 5 slabs? On essential item, the rate is 0%. On common use item, the rate is 5%. The standard rate is 12%. And maximum goods and all services standard rate 18%. And luxury items and tobacco 28%. Okay. GST is paid on purchase of goods. जब कोई भी सप्लायर GST को पे करता है और तो वो कहाँ से कलेक्ट कर लेता है? वो बाद में सेल होने पर कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जब मान लीजिए ये आपका मिस्टर ए है, इसने जब मटेरियल परचेज किया तो इसने टैक्स पे कर दिया, लेकिन जब ये गुड्स को सेल कर देगा तो गुड्स तो जीएसटी को ही कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जो जीएसटी आपने पे किया है वो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा बाद में, जब आप कस्टमर को सेल करोगे तो उसे जीएसटी कलेक्टेड बोलेंगे। तो जब आपने पे किया है तो उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। याद रखना, जब भी आप गुड्स को खरीदोगे तो इनपुट जीएसटी आएगा, और जब कलेक्ट करोगे तो आउटपुट जीएसटी आएगा। नेम से भी याद रख सकते हो। आउटपुट जब आपने कलेक्ट किया तो ये आपका नहीं, गवर्नमेंट का है, तो आप इसे पे करोगे, और जब आपने इसे पे किया है तो अल्टीमेटली आपको वापस मिलेगा, इन हो जाएगा आपके बिजनेस में, तो इनपुट जीएसटी। गुड्स के खरीदने पर अगर दोगे तो वो वापस मिलेगा, इनपुट जीएसटी, और गुड्स के सेल करने पर जो आपको मिला है वो आप गवर्नमेंट को दोगे, उसे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो एज अ जीएसटी पेड ऑन परचेज इज नॉट अ कॉस्ट, इसीलिए जो जीएसटी बायर ने दिया है, ठीक है, सप्लायर ने दिया है टैक्स, तो वो उसका कॉस्ट नहीं है, वो तो उसके लिए असेट है। अल्टीमेटली जब वो सेल होगी तो वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अभी आपको बताया कि आपने परचेज किया तो आपने टैक्स को पे किया, और आपने जब सेल किया तो आपने टैक्स को क्या किया? कलेक्ट किया। जब आपने पे किया तो उसको आपने क्या बोला? आपको वो वापस मिल जाएगा, इनपुट जीएसटी। और जब आपने सेल किया तो उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या है? ये तो आपको वापस से मिल जाएगा, तो ये आपके लिए क्या है? असेट। और ये आपको पे करना है, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन टैक्स को कलेक्ट करता है वो उसका नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। अंडरस्टैंड? You can take screenshot by pausing the videos also. Next important notes. Usually GST is paid on purchase of goods. Generally GST को कब पे करते हैं बेटा? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर, परचेजर के लिए कॉस्ट नहीं है, असेट है। तो जब जीएसटी कलेक्ट होगा तो वहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हावेवर अगर जीएसटी जो आपने पे किया, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ तो पे किया और आपका जो है कलेक्ट जो हुआ वो आपका 80 हुआ, यानी कि 20 रुपीज़ आपका नहीं हो पाया, तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर जीएसटी पेड, जहाँ कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे जो जीएसटी पे है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कौन से केसेस में आप जो जीएसटी पे कर रहे हो सेट ऑफ नहीं कर सकते? रेस्टोरेंट के बिल्स, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट, क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप फी, रिपेयर मेंटेनेंस, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे अगर आपने जीएसटी पे किया है
तो आप इसे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको पे ही करना है, ये आपका कॉस्ट ही है। इन पर दिया हुआ आपका जीएसटी कॉस्ट है, असेट नहीं है, आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड, जीएसटी जो आपने पे किया है वो वापस है, जो आपका इनपुट जीएसटी वो वापस से रिवर्स कब हो जाएगा? जब आपने अपने सप्लायर को सामान वापस कर दिया, जब प्रोपराइटर अपने पर्सनली उसके लिए सामान ले गया, जब गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, इन सारे केसेस में आपके जीएसटी पेड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सैलरी देने पर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, तो ये जो है ये एग्जम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये लग रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइड नेचर है। कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस जितने भी हैं सारे के सारे मर्ज होकर उन्होंने एक टैक्स बना लिया है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स चल रहे हैं सारी स्टेट्स में। ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसे वापस मिल जाना होता है। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स का ही एक रूप है। जब भी आप गुड्स को सेल करोगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यू एडिड टैक्स। आज के लिए इतना ही। व्हाट टॉपिक वी हैव अंडरस्टूड टुडे? We have understood meaning of GST. GST is a goods and service tax. ओके 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 जुलाई को ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हुआ था। कौन कौन से टैक्सेस इसमें मर्ज हुए हैं? आपके सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस थे और जो स्टेट लेवल के टैक्सेस थे वो मर्ज होकर 2 तरह के टैक्स बन गए। SGST बन गया स्टेट लेवल का, और सेंट्रल लेवल का CGST। GST के रेट स्ट्रक्चर में 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी हमने नई टॉपिक कवर किया। थैंक यू सो मच।